مفتی صاحب تقابل ادیان پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں. تقابل ادیان سمجھ میں نہیں کریں گے. کمپریزن آف بکس، کمپریزن آف تھاٹس، یہ تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کمپریزن آف تھاٹس، تقابل ادیان کے اچھی گفتگو ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، سنت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا ڈیمانڈ ہے، شریعت کے کیا تقاضے ہیں. اس پہ گفتگو لیکن ہے چترویدی ہیں اور نستر بھی بہت اچھا لگاتے ہیں. ہمارے بچے کس طرح کے بال کٹواتے ہیں، کس طرح کے ہماری ماں بہنیں لباس پہنتی ہیں، ان کا برقع نقاب کیسا ہے، ان کا پہناوا کیسا ہے، ان کا چلنا پھرنا کیسا ہے، ہمارے بہو بیٹیوں کا لباس کتنا تبدیل ہو رہا. جینس پینٹ پہنتے ہیں تو کہاں تک پہنتے ہیں، اتنا ڈھیلا پہنتے ہیں کہ کمر کے نیچے چلا جاتا ہے، اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ گھٹنا سے اوپر ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کتابیں ان کے پاس گفتگو ہے. میں تو ان کو بہت دعا دیتا ہوں، اتنی دعا دیتا ہوں جس کا حساب آج جو لوگ نہیں سنیں گے کل مجھے فون کر کے بتائیے گا. کلچر صاحب آپ نے جو کہا تھا 100% 100% صحیح تھا، ویسے ہی گفتگو ہوگی. آپ کے اوپر یہ حملہ بھی کرتے ہیں، ایک ایسا حملہ کہ سننے کے بعد سر چکرا جائے گا. مولوی ایسی گفتگو کرتا ہے یار. قرآن کیا کہہ رہا، گیتا کیا کہہ رہی ہے، رامائن مہابھارت کیا کہہ رہا، نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرا رب کیا فرما رہا ہے. ان تمام چیزوں پہ مشتمل حضرت کی گفتگو ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کرتے رہیں. آج بے چینی بڑی پھیلی ہے. آج کی تقریر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں گا، انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا. غور سے میری بات آپ سنیے. ایک بات آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا. آپ دیکھتے ہوں گے آج لوگوں کے پاس 3 منزلہ مکان بنوا لیا، 3 تلہ مکان بنوا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیا، 20 لاکھ کا بنگلہ بنوا لیا، 50 بیگھہ زمین کا مالک ہو گیا. ساری چیزیں ان کے پاس ہے. ایک بیٹا مالدہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کلکتہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ انجینئر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ ماسٹر ہے. ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہے. لیکن آپ اس سے پوچھئے آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، بہت سکون ہوگا زندگی میں، بڑی خوشحالی ہوگی زندگی میں. وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں سکون کی دولت سے محروم رکھا ہے. سب کچھ تو دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ نے میری باتیں سن لیا، اگرچہ آپ غریب ہوں گے لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں یہاں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا. لیکن یہ سکون کا نسخہ کسی دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا سے پوچھنا ہے، نبیوں کے سردار سے پوچھنا ہے، آمنہ کے لال سے پوچھنا ہے. اگر آپ حضور کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کریں گے، جھونپڑی میں
रहेंगे उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। एक बात मैं ये बताऊंगा आज अपनी तकरीर में, दूसरी बात आज मैं ये बताऊंगा, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे मैं एक बात ये बताऊंगा, माँ बहनें भी कसीर तादाद में है, मैं ये बताऊंगा आज सारी दुनिया के लोग हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अल्लाह जन्नत दे दे। ये हजरत बैठे मौला मंजूर साहब किबला, ये कहेंगे हमेशा दुआ मांगो अल्लाह जन्नत दे दे। जब कभी खाना-ए काबा पे नज़र पड़ती है, उलमा फरमाते हैं खाना-ए काबा पे जब पहली नज़र पड़े, जहाँ पे आदमी सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ पहुँचता है, उस खाना-ए काबा पे जैसे ही नज़र पड़े तो आदमी को सबसे पहली दुआ ये मांगनी चाहिए, या अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के तू मुझे जन्नत अता फरमा दे। इंसान को ये दुआ मांगनी चाहिए। सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है, लेकिन क्या जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? सुने, आज मैं बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है जो मर्द या औरत 4 काम कर ले, उन 4 काम करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देता है। इंशाअल्लाह आप अगर सुनेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा। माँ बहनों तुम भी सुनो, आपको भी सुनने की ज़रूरत है। आप अगर सवार लेती हैं अपने आप को, आपकी आने वाली नस्लें सवर जाएंगी। आप अगर दीनदार बनती हैं, आपकी घर की बेटियां दीनदार बन जाएंगी। आप अगर दीनदार बनते हो मुसलमानों, आपके घर के बच्चे दीनदार बन जाएंगे। ये बच्चे देख कर सीखते हैं। आप अपने बच्चों के लिए आज सारी चीज़ें सोचते हैं, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, सारी चीज़ें सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए सब कुछ बाद में सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि मेरा बच्चा मुस्तफ़ा का आशिक कैसे बनेगा, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला कैसे बनेगा, मेरा बच्चा नमाजी कैसे बनेगा, मेरा बच्चा दीनदार कैसे बनेगा। आप अगर सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कुछ समझ में आएगी मेरी बातें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, और अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं मंत्र भी पढ़ दूँगा, अगर आपकी इजाज़त होगी। अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, फिर मैं मंत्र भी पढ़ूँगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा, फिर मैं अपने बैग को भी खोलूँगा। मैं अक्सर बैग को कहीं कहीं खोलता हूँ, लेकिन अगर आपने ज़हन बना दिया इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूँगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और एक बात बता दूं, मेरे नबी का गुंबदे खजरा, बोलो 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, गुंबदे खदरा ज़रूर देख लेना जाकर। ये गुंबदे खदरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है तो फिर सामने से देखते गए आशिक तो आंसू के कतरे निकलते गए और ज़बान से यही गुनगुनाते गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। आप भी याद करके जाओ, माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ। यहाँ से घर जाना तो गाना ना गुनगुनाना, म्यूजिक ना सुनना, तराना और किसी चीज का ना गुनगुनाना, बल्कि जब घर जाना तो फिर नाते नबी का ये तराना गुनगुनाना कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद
گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب عاشق پہنچتے ہیں نا مدینے میں تو ایسے روتے ہیں مکہ مدینہ شریف میں، اللہ اکبر۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ ساری خطائیں ان کو یاد آ گئی ہے۔ ہم جیسے گنہگار پہنچ کر نہ روئیں۔ جب غوث اعظم کے تعلق سے آتا ہے، غوث اعظم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایسے رو رہے تھے، کوئی شخص دیکھنے والا سوچنے لگا سن کر یہ کون گنہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ جب چادر کو ہٹا کر چہرے کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں وقت کے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے ہیں، وہ غوث اعظم جو مادر ذات ولی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کا ولی بن کر۔ کچھ لوگوں کو اللہ بعد میں ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن غوث اعظم ایسے ولی ہیں جن کو اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ ہی میں ان کو ولایت عطا فرما دیا تھا۔ وہ غوث اعظم اتنا روتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا کیا ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی خطائیں کی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ جو آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے ان کے دل کو اللہ صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ زیادہ رونے والا بندہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے، زیادہ رونے والا بندہ اللہ کا پیارا ہوا کرتا ہے۔ غور سے سنو لوگو، اگر سننا چاہتے گئے میں ایک منتر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہ میری باتیں جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ باتیں میں آپ کو بتا کر جا سکوں۔ میں منتر پڑھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں منتر؟ اجازت ہے؟ ارے بھائی بولو نا، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، پیار سے بولیں یا رسول اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے، مالک ان سب کو لمبی عمر عطا فرما اور اس وقت تک موت نہ دینا مولا جب تک کہ تیرے حبیب کے روضے پر حاضری نہ نصیب ہو جائے۔ یہ وقت نازک ہے، اس وجہ سے آپ جلدی جلدی سنتے چلو۔ میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنیں، ایک منتر پڑھتا ہوں، یو مام جمنادم شبے تلوک مہیشورم۔ او بھائی صاحب تھوڑا سا ایک کو کم کیجئے، ایک کو ہلکا سا کم کر دیجئے، زیادہ نہیں۔ یو مام جمنادم شبے تلوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی ادھرما بھی بھوات کشنا پردشینتی کلستریکیا استریشو تشکاشو واڑشنے جایتے ورن شنکرہ वायुर्दे जर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशी चारतं पल्वन स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर कुरों प्राणं प्रादीपं सोमवती विश्वेशं स्वरूपं असुमा सुगमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नापपुरीता लील गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है।
اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں سنو سنو مصطفیٰ کا پیغام کیا گئے، مصطفیٰ کے پیغام کو زمانے والوں کے سامنے عام کرتا گئے، اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں شرنಯ ಗುರು ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯರಿಚಾರ ಮಗ ಶುಭ ಸಾಗರ ಚರಣನಗೆ ಗುರು नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मांगा सुख पावे और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनना लोगों, मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। एक किताब है भागवत गीता, मैंने इसका भी एक मंत्र पढ़ा है। मेरे पास एक किताब है रामायण जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है। मैंने रामायण का भी एक चौपाई मैंने पढ़ी है। इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा और मैं ये साबित करूँगा कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है, और मैं ये साबित करूँगा कि पूरी दुनिया में मानवता का अगर पैगाम कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब तो हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानवता का पैगाम देता है तो वो मजहब इस्लाम दिया करता है। इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा। जो लोग कहते गए आज टीवी पर बैठकर मीडिया वाले चीखते गए और चिल्लाते गए और कहते गए देखो मुसलमान ऐसा होता है, देखो मुसलमान ऐसा होता है, आज टीवी में बैठकर कुछ लोग हर वक्त फूट डालना चाहते गए, लेकिन हम तो जलसों से पैगाम देते गए। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते गए, लेकिन कुछ लोग फाड़ने की बात करते गए, कुछ लोग तोड़ने की बात करते गए, और ये मीडिया वाले दिखाते गए देखो इस्लाम ऐसा है। मैं कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँ क्या आपने किसी मुसलमान को वैसा देखा है जो टीवी मीडिया वाले बताते गए, जो लोग कहते गए कि IS ने ऐसा कर दिया या उसने फलां जगह खून बहा दिया। अल्लाह की कसम हमारा मजहब IS वालों को देखने की इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब किसी टेररिस्ट और आतंकवादी को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो मानवता का सम्मान सिखाता है, हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम सिखाता है। हमारा मजहब सिखाता है कि अगर रास्ते में तुम चलो तो अगर एक कांटा भी नजर आए, एक छोटा सा पत्थर नजर आए, उस पत्थर को इस नीयत से हटा दो कि इस पे कोई भी अल्लाह की मखलूक चलेगी, कोई भी इंसान चलेगा, चाहे वो हिंदू चलने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी चलने वाला चलेगा, कहीं उसको ठोकर लगकर तकलीफ न हो जाए। इस नीयत से अगर तुम पत्थर को रास्ते से हटा दोगे, हमारा इस्लाम कहता है अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। ये मजहब इस्लाम सिखाता है, लेकिन आज जैसे टीवी वाले दिखाते हैं हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम मानवता का पैगाम देता है, लेकिन हम ये कहते हैं हुजूर से बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है। ये हमारा दावा है और हम साबित करेंगे कि आज पूरी दुनिया जो बौखलाई हुई है, लोग कहते हैं कि आज इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे। मैं किसी और की बात नहीं करता। जो लोग ये बोली बोलते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कभी इस्लाम मिटने वाला है। इसलिए कि आज आप देखें मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है। यही वजह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है, आज बरतानिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज यूरोप इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज इंग्लैंड इस्लाम और कुरान के पीछे है, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। इसलिए कल अगर
دن میں 1000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج روزانہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں، اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں آج جتنی پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑے گئے، ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے گئے۔ ہم تو کہتے گئے صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ ہم تو یہ پیغام دیتے گئے زمانے والوں کو، لیکن زمانے والے چیختے گئے، زمانے والے چلاتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ٹٹول کر دیکھو، مسلمان کسی چیز کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے۔ مسلمان، لوگ کہتے ہیں مسلمان بھڑک جاتا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے مجمع میں سے 8 سال کے بچے کو اٹھا کر کوئی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں میں گالی دوں گا تو بھڑک جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارا 8-10 سال کا بچہ بھی ہمیں گالیاں دینا ہے دے لو، ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے لو، ہمارے باپ کو گالیاں دینا ہے دے دو، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں تو نے ادنا سی گستاخی کی پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو جیتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، اور موت بھی آئے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی۔ اس وجہ سے ہمارا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم تو اس طرح کی زندگی جیتے گئے اور ہم تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے گئے۔ یاد رکھنا ہم نے کیا کہا، دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں یہ آن ریکارڈ بولتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا غور سے دیکھیے گا، میرے پاس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک کتاب کا نام علامہ دہلان زینی، کتاب کا نام سیرت النبویہ، اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا۔ اللہ اللہ، ذرا سنیے گا، علامہ دہلان زینی فرماتے ہیں کہ آپ پوری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ پہ جمع کر دو اور جناب محمد الرسول اللہ کی عقل کو ایک جگہ پہ رکھی جائے تو پوری دنیا کی عقل ایسے ہوگی جیسے بڑا سا ریگستان میں، بڑا سا بالو والی زمین میں، ریتیلی زمین سے ایک چٹکی آپ اس سے ریت اٹھائیں، اگر ناخون ڈبائیں گے اس میں ناخون کے جتنے ذرات نظر آئیں گے ان سارے ذرات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی، جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں کھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے، او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو زمین تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین یو آر آور گاڈ،
You are praying for you. ओ ज़मीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी परस्तिश करूंगा। लेकिन लोगों ने देखा एक मिट्टी का ढेला एक शख्स ने लिया, 100 ग्राम के मिट्टी का ढेला, 50 ग्राम का एक पत्थर हाथ में लिया, पत्थर से 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को टकराया, 50 ग्राम के छोटे पत्थर से मिट्टी का बड़ा सा ढेला टकरा कर चकनाचूर हो गया। तो लोगों ने कहा ओ मिट्टी 100 ग्राम तू 50 ग्राम पत्थर से टकरा कर चकनाचूर हो गई, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने पत्थर को अपना खुदा माना, लोगों ने पहाड़ को अपना खुदा माना, लोगों ने बड़े बड़े चट्टानों को अपना खुदा मान लिया। और जब पत्थर की पूजा शुरू कर दिया लोगों ने, आप छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाओ, आप झारखंड के राजमहल इलाके में चले जाओ, आप झारखंड के साहेबगंज इलाके में चले जाओ, ऐसी ऐसी मशीनें वहाँ मौजूद है जिस मशीन में बड़ा सा बड़ा चट्टान अगर रख दिया जाए तो बड़े से बड़े पत्थर को मशीन पीस कर पाउडर बनाकर उड़ा देती है, मशीन पीस कर उसे धुआं की तरह उड़ा देती है। लोगों ने जब देखा कि लोहा के कब्जे में आकर पत्थर चकनाचूर हो गया और वो पत्थर बिल्कुल सुरमा की तरह बन गया, लोगों ने कहा ओ पत्थर तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने फिर लोहे को अपना खुदा मान लिया, लोगों ने परसों लोहे की पूजा करता रहा। जब लोग परसों लोहे की पूजा करते रहे, लोगों ने कहा लोहा तू बड़ा मजबूत है, तूने पत्थर को भी तोड़ दिया, तूने पत्थर को सुरमा बनाकर उड़ा दिया। अब लोगों ने लोहे की पूजा करना शुरू किया, लोगों ने लोहे की इबादत किया बहुत दिनों तक। अचानक लोगों ने देखा कि एक आग जल रही है, उसमें लोहे के रड को डाला, सरिया को डाला। 2 घंटे के बाद 1 घंटा के बाद लोहा इतना पक गया कि उसे पीट पीट कर लोहार ने एक हाथ के लोहे को 2 हाथ का बना दिया। अब कहा कि ओ लोहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि तू तो आग में जाकर पिघल गया। आग की लोगों ने पूजा शुरू कर दिया, आग की लोग इबादत करने लगे। जब आग को लोग अपना खुदा मानने लगे, अचानक बारिश हो गई, बारिश के चंद कतरात उस आग पे जैसे ही पड़े आग बुझ गई। अब लोगों ने देखा कि पानी को लोग खुदा मानने लगे, नदी तालाब की पूजा करने लगे, गंगा और जमुना की लोग पूजा करने लगे, पानी को लोगों ने अपना खुदा मान लिया। जब साइंस और तरक्की करने लगी, साइंसदानों ने और ज़्यादा मेहनत किया, साइंसदानों ने और ज़्यादा जब मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश किया तो साइंसदानों ने तहकीक ये किया, गौर से सुनिए, तहकीक ये किया कि ये जो पानी है कैसे बारिश कैसे होती है। यानी वो बादल आसमान पे भाप की शक्ल में पहले जमा होता है और ऊपर से बादल अपने शुआओं को पानी पे लगाता है और वो बादल भाप जब बनकर वो गर्म होता है तो टेम्परेचर को टेम्परेचर पे जब ज़्यादा रखा जाए उस पे भाप बनता है, उसके बाद आज बादल से बारिश होने लगती है। लोगों ने जब पानी को अपना खुदा माना, लोगों ने कहा कि ओ बादल तू कैसे होता है, कहा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पे लगाता है और वो भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है, ये सारा सूरज का कमाल है। लोगों ने मिट्टी को छोड़ा, लोगों ने पत्थर को छोड़ा, लोगों ने पानी को छोड़ा, लोगों ने आग को छोड़ा, लोगों ने सूरज को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक मुलव्विस थे, बड़े बड़े साइंसदान भी उस सूरज की पूजा करने में लगे थे। लेकिन जब लोग सूरज की पूजा करने लगे दुनिया वाले, तो रब की मशीयत को जलाल आया। सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पतन अतहर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त जनाब अब्दुल्लाह के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई तो फरमाया ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? कहा या रसूल अल्लाह गुलाम आपका हूँ, नौकर आपका हूँ, फिर मैं नमाज कज़ा पढ़ूंगा, इतना कहना था। कहा ए अली तो जरा बोलो अदा पढ़नी है? हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, पश्चिम से जब पलटाया सूरज को तो ये जवाब था बड़े बड़े साइंसदानों का, ये जवाब था
बड़े बड़े अक्लमंदों का। और हुजूर ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, जिस सूरज को तुम अपना खुदा मानते हो, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, वो मेरे इशारे पे नाचा करता है, वो मेरे इशारे पर पलटा करता है। आला हजरत ने फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे बड़े अक्लमंद हैं हुजूर। हुजूर ने इस्लाम लाया, हुजूर ने लोगों को बताया, लोगों मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। गौर से सुनो, इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम पैगाम ये देता है, आज सारी जिंदगी घूम लो, सारी दुनिया घूम लो, सुकून नहीं मिलने वाला। याद रखना, जितनी भी दौलत आ जाए, जितने भी खूबसूरत हो जाओ, दुनिया में कोई सुकून से नहीं जीता है। सुकून से वही जिएगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फार्मूला पे अमल करेगा। गौर से सुनना, कौन सा फार्मूला पे अमल करेगा। आप ये समझते हो हमारे पास दौलत आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास बंगला आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास ज़मीन आ जाए हम सुकून में रहेंगे। अल्लाह की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुकून किन चीज़ों में है, बंगला में सुकून नहीं है। आप ये समझते हो हम उनकी तरह बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आज एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर सोचता है, अगर मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो कहते हैं 4 व्हीलर मैं खरीद लूंगा, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। 4 व्हीलर वाले से पूछो, वो कहेंगे मैं हवाई जहाज़ खरीद लूंगा, मुझे तब सुकून आएगा। एक मर्तबा की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा किताबों में, तो मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। और ज़माने वालों के लिए वो आर्टिकल फिट आती है। वो आर्टिकल क्या है, गौर से सुनिए। आर्टिकल में ये लिखा था, मेरे एक दोस्त ने आर्टिकल भेजा, कहा कि एक कौवा था, कौवा। वो कौवा आप समझते हैं कौवा? अरे बोले ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग कौवा को? क्या बोलते हैं? कौवा बोलते हैं। कौवा किस कलर का होता है, जरा बोल कर बताएं, किस कलर का होता है? काला कलर का। एक दिन कौवा बड़ा मुरझा कर बैठा था। कौवा सोचने लगा, मैं कितना काला कलौटा हूँ, वो बगुला कितना सफ़ेद है। बगुला समझते हैं ना, बगुला, बोगला, अच्छा बोगला। कौवा बड़ा काला कलौटा, वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला, बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफ़ेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती हैं वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफ़ेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है। इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज़ में है, मैं काएं काएं करता हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज़ सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ 2 रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है,
یہ کوا کہا کہاں مور ملے گا؟ کہا پھلا چڑیا گھر کولکاتہ چلے جاؤ۔ اب وہ کوا جا کر مور کے پاس پہنچا، کہنے لگا او مور میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے تو، تیرا کلر اتنا اچھا ہے، لوگ مالدہ سے تجھے دیکھنے آتے گئے، لوگ بردوان سے تجھے دیکھنے آتے گئے، لوگ فرکا سے تجھے دیکھنے آتے گئے، اتر دیناج پور دکن دیناج پور جھارکھنڈ سے لوگ تمہیں دیکھنے آتے گئے، تو کتنا خوبصورت ہے مور میرا بھائی۔ مور کہنے لگا ارے تم میری خوبصورتی کو تو دیکھ رہے ہو لیکن مجھ سے اچھی زندگی تمہاری ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اگرچہ تو کالا کلوٹا سہی، میں اگرچہ خوبصورت ہوں لیکن یہ خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اسی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے پکڑ کے مجھے قید میں ڈال دیا ہے، لوگوں نے پکڑ کے مجھے بند کمرے میں رکھا ہے، ایک جالی میں بند کر کے رکھا ہے۔ مجھ سے خوبصورت تیری زندگی ہے، مجھ سے خوبصورت اور اچھی تیری زندگی ہے کوا۔ ارے کالا ہے تو کیا ہو گیا، کم سے کم جہاں چاہتا ہے اڑ کے تو چلا جاتا ہے، جس ٹہنی پہ ڈالی پہ درخت پہ چاہتا ہے اس درخت پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مجھ سے خوبصورت تیری زندگی ہے۔ یہی حالت انسانوں کی ہو گئی ہے جو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے بڑے سکون میں موٹر سائیکل والا ہے، وہ موٹر والا سوچتا ہے کہ یہ فور ویلر والا بڑے سکون میں ہے۔ کبھی جا کر پوچھو فور ویلر والے سے، کبھی مکان والے سے پوچھو، کبھی زیادہ پیسے والوں سے پوچھو، اس کو اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی ہے کہ ہمارا پاس اگر پیسہ کم ہو گیا تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا، ہماری ماں کا کیا ہوگا، ہماری بہن کا کیا ہوگا۔ ہم نے گجرات میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے گھر میں میرا انتظام تھا، احمد آباد میں اتنا بڑا مالدار شخص ہے جن کی چار فیکٹریاں ہیں سریا بنانے والی، رڈ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، لوہے کو پگھلا کر۔ لیکن آپ جانتے ہو جب میں بیٹھا، حضرت ہلچل سیوانی صاحب قبلہ جب بیٹھا، سامنے میں گجراتی تھالی لا کر رکھا، گجراتی تھالی بہت مشہور کھانا ہے، سامنے سجا دیا۔ ہم نے کہا آپ بھی آئیے، کہا مفتی صاحب آپ کھانا شروع کریں۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا میرا کھانا بعد میں آئے گا، ڈاکٹر نے مجھے احتیاط کرنے کو کہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تمہیں زیادہ دن زندہ رہنا ہے تو پھر ایسا ویسا کھانا کھاؤ گے، مسالہ دار کھانا کھاؤ گے تو تم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ جب ان کا بیٹا ٹفن لے کر آیا تو صرف دال اور سوکھی سی روٹی پڑی تھی، اسی سوکھی روٹی کو دال میں بھگوتے جاتا تھا، منہ میں ڈالتا جاتا تھا۔ میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، آپ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یا اللہ ہمیں تو نے غریب تو بنایا ہے، کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے، کم سے کم اس کی طرح پریشان حال تو نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ چار چکے والا ہوائی جہاز والے کو نہ دیکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر زندگی میں سکون چاہیے کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو، جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تیری زندگی میں اضطراب پیدا ہو جائے گا، تم ٹینشن میں چلے جاؤ گے اور یہ کہو گے یا اللہ اس کو اتنا مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یاد رکھنا اگر دیکھنا چاہتے ہو اوپر والوں کو دیکھو گے ٹینشن میں چلے جاؤ گے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ایک بائک والا فور ویلر والے کو نہ دیکھے بلکہ سائیکل والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے میرے مولا کم سے کم سائیکل والے سے تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ ایک سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم اس سے بہتر تو نے مجھ کو رکھا ہے، اس کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے، مجھے تو نے سائیکل عطا فرمایا ہے۔ ایک پیدل چلنے والا بغیر پاؤں والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کم سے کم تو نے ان کی طرح لاچار تو نہیں بنایا ہے، ہمیں کم سے کم پاؤں میں چلنے کی طاقت تو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اوپر والوں کو مت دیکھو کبھی بھی، نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر نیچے والوں کو دیکھو گے زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور غور سے سنو، اگر زندگی میں سکون چاہیے، زندگی میں سکون
आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास से की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोंपड़ी वाले को देखे, झोंपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे, जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो, तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है, वहां जाकर देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है, एक नुस्खा पे पहले अमल करो। जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहाँ से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20 ईंट अपने कांधे पर पीठ पर लेकर, वो 20-20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला। 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है, इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता। तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमाइश अपने शौहर से न करेगी, अपने सामी से कभी बेजा फरमाइश न करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो। बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर गरीब हो सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत में सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की इधर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो
फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूँगा ऐसा क्यों कि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है? कभी आपने देखा है कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो? तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा? मत करो 30 लाख रुपए खर्चे, मत करो 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग? मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। क्या भाई साहब? सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है। आप दिल में जगह दें मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत कौम ने इमाम के साथ क्या किया? हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान, अभी रमज़ान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियाँ हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे पढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते गए, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले
पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो? मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए? 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो? हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिब सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो, अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों गए? कभी सोचा गए? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन दिन रात रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है ए देखो गरीब की बेटी आ रही है। रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मेरे बाप ने भी मुझे नया कपड़ा ला कर दिया है। इतना सुनना था। अमीर की बेटियां कहती गए ओ गरीब की बेटी और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, अरे सुन, तेरे बाप ने कपड़े तो दिया है, क्या हाथ में कांच की चूड़ियां भी दिया है? जब इतना सुनना था, कहने लगती है ओ अमीर की बेटियों ताने मत दे, तू जानती है मेरा बाप कहता है कि ओ मेरी बेटी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आसमान से चांद तारे तेरे कदमों पे लाकर डाल दूंगा। मेरा बाप जब चांद तारे लाकर दे सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकता। रुक, अभी मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब की बेटी जाती है, रोने लगती है बाबा अमीरों की बेटियों ने हमें ताने दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डालकर टटोला, 1 रुपए भी नहीं निकला। बाप कहने लगा बेटी आज माफ कर दे मेरी गुड़िया, कल तेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, रात को दिन, दिन को रात करके रिक्शा चलाएगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आएगा। समझाया बहुत का बाबा आप कहाँ चांद तारों की बात करते हो, कांच की चूड़ियां लाकर नहीं दे सकते हो। इतना सुनना था। वो गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी रोने लगी। बाप ने समझाया, किसी तरह ईदगाह की तरफ बाप निकला। उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले जब ईदगाह की तरफ गया, ईद की नमाज से इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही था, एक बच्चा दौड़ कर गया, कहने लगा चचा जान गजब हो गया, चचा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ भतीजे? कहा कि चचा आपकी 6 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मैं आपसे कहना चाहूँगा लोगों, आप 30 रुपए आपकी नज़र में कुछ नहीं है, 30 रुपए आपकी नज़र में कुछ नहीं है। पूछो उस रिक्शा चलाने वाले से, अगर उनके पास 30 रुपए होते, उनकी 7 साल की गुड़िया, उसकी बेटी फांसी के फंदे से नहीं लटकती। इसलिए गरीबों को, मजदूरों को मजदूरी पूरी दिया करो, और जिस मजदूर को गांव में कोई नहीं लेकर जाता हो, उस मजदूर को तुम अपने यहाँ काम पर लेकर जाओ। 4 मजदूर हो की ज़रूरत हो, 3
3 मजदूर को, हट्ठे गुट्ठे को सब ले जाते हो, उन 3 के आड़ में एक कमजोर शख्स को भी लेकर चले जाओ, जिसको गांव में ग्राम में कोई नहीं पूछता है। वो जाएगा क्या करेगा? 10 बांस कम काटेगा, 10 डलिया मिट्टी कम उठाएगा, 10 कोदाल कम चलाएगा, 10 ईंट कम उठाएगा दिन भर में। लेकिन याद रखना, अगर उस गरीब शख्स को, कमजोर को आपने मजदूरी पे रख लिया, आप 400 रुपए शाम को दोगे, अगर वो 400 रुपए लेकर जाएगा, न जाने उसके घर में कितनों दिनों से गोश्त नहीं बना है, वो गोश्त अगर लेकर चला गया, उसके बच्चे गोश्त खाकर दुआएं दे देंगे, वो बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगेंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, कभी भी मजदूरों की मजदूरी मत मारा करो। और ये चलन बहुत ज़्यादा चली हुई है। वो फलां ठेकेदार साहब वहाँ लेकर गए, 1 महीना खटाया, 1 महीना खटवाने के बाद बगैर पैसा के घर भेज दिया। यहाँ हुजूर फरमाते, हम कैसे मुसलमान हैं? या हुजूर क्या फरमा रहे हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दिया करो, काम करवाने वाले को उसकी उजरत दे दिया करो। कभी सोचा है आपने गरीबों की मदद करो? आपको अल्लाह ने मालदार बनाया है, सुनो, सुकून तभी मिलेगा, पड़ोसी सुकून से सोएगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। मोहल्ले में अगर एक इंसान भूखा रह गया, एक शख्स की बेटी अगर कवारी रह गई, तो याद रखिएगा सारे लोग जिम्मेदार होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता आज मस्जिद के लिए जलसा करवाते हो, मदरसा बनाने के लिए जलसा करवाते हो, मस्जिद बनाने के लिए जलसा करवाते हो, हर तंजीम बनी है, कोई तंजीम ऐसी भी तो बने, कोई कमेटी ऐसी भी तो बने, कुछ नौजवान ऐसे भी तो रहे कि सुनो, साल भर हम कमाएंगे, उनमें इतना पैसा कुछ परसेंटेज निकाल कर, इतना परसेंट निकाल कर रख देंगे और साल भर में इतने लाख हो जाएंगे, उनसे हम मोहल्ले के गरीब बाप की बेटी की शादी करवा देंगे। अगर उनकी बेटी की शादी हो गई, अल्लाह की कसम पूरे गांव में खुशहाली अल्लाह डाल देगा, आपकी जिंदगी में भी अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। इसलिए खबरदार खबरदार, मजदूरों को मजदूरी फुल दिया करो। जिसे कोई नहीं पूछता है, आप उसे लेकर चले जाओ, आप उसको पूछो, हम और आप क्या हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। आज तो लोग गरीबों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। हुजूर की ज़िंदगी का कभी मुताला तो करो। मक्का की सरजमीन है, हुजूर बाहर धूप में, एक गुड़िया आ गई, खड़ी हो गई एक औरत, जिसको मक्के वाले पागल कहते थे। ये औरत पागल है, बकती रहती है। एक दिन अचानक हुजूर को बुलाती है, या रसूल अल्लाह कुछ फरियाद लेकर आई हूँ। हुजूर चले गए। वो चिलचिलाती गर्मी गर्मी है, सख्त धूप है, जून जुलाई का महीना, वो गर्मी, सख्त धूप में हुजूर खड़े हैं। हजरत उमर आ गए, सिद्दीक़ अकबर आ गए, या रसूल अल्लाह ये औरत तो पागल है, इसकी कौन सुनता है मदीने में, इससे कौन बात करता है? या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, इसकी मक्के में तो कोई नहीं सुनता है, अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर दर्द दिल ये बयान करने किसके पास जाएगी? कभी सोच कर तो देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह की कसम ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों के घर में सुकून डालने वाला बन जाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में सुकून डाल देगा। दूसरों के बच्चों को देखकर हसद मत करो, जलन मत करो, दूसरों की बर्बादी मत चाहो, उनके लिए दुआ करो, मेरे मौला तू जब उसको दे सकता है, मुझे तू क्यों नहीं दे सकता है? मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। ये कह के दुआ मांगो। मैंने क्या कहा? अगर सुकून चाहते हो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। साइकिल वाला, पैदल चलने वाले को शेख सादी के ताल्लुक से आपने सुना नहीं? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह
दमिश्क में जा रहे थे, जामा मस्जिद के करीब पहुंचे न तो देखा एक ऐसा राजा है जो घोड़े पे सवार है, कीमती लिबास पहनकर है, सर पे अमामा सजाकर है, पगड़ी लगाकर है। हजरत शेख सादी कहने लगे, या अल्लाह, ये तेरा नाम तक नहीं लेता, तूने इसको इतनी दौलत दे दिया, ये राजा बन के बैठा है, और मेरे मौला मैं तेरे दीन के रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन हालत ये मेरे पाँव में चप्पल तक नहीं है। तो जब इतनी शिकायत आई दिल में, आगे बढ़े, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा एक ऐसा शख्स है जिनके दोनों पांव कटे हुए हैं। इतना जब देखा, अंदर मस्जिद में जाकर सजदे में गिर गया और रो रो कर दुआ करने लगा, मेरे मौला कम से कम तूने उन दोनों पांव कटे शख्स से तो मुझको बेहतर बनाया है, मेरे पांव में चप्पल तो नहीं है, कम से कम उससे तो मुझे बेहतर पांव वाला तो मुझे बनाया है। लोगों, अपने से ऊपर वालों को मत देखा करो, ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में आ जाओगे, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह ज़िंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से सुनो, ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा वक्त भी हो चुका है, मैं दर्द दिल बयान कर रहा था। जब लोग कम हो, मैं चाहता हूँ कुछ दर्द दिल, कुछ बातें ऐसी लोगों को दे दूँ ताकि कम से कम ऐसा इस नुस्खे पे आप अमल करके देखो। अल्लाह की कसम, याद रखना अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने जितना तुमको दिया है उसी पे राजी हो जाओ, उसी पे राजी हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार तुम बन जाओगे। जितना अल्लाह ने दिया है, लेकिन यहाँ हमको एक मकान मिला, हम दूसरे के दो मंजिला मकान को देखते हैं। हमको अल्लाह ने अपाची दे दिया है, हम 4 चक्के वालों को देखते हैं। फिर तेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आने वाला। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने जितना दिया है उतने ही पे राजी हो जाओ, सबसे बड़ा मालदार तुम बन जाओगे। आप ये नुस्खे को अमल करके देखें, इस नुस्खे पे अल्लाह की कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आपके घर में सुकून आ जाएगा। ये पहली बात। सुकून अगर चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हाँ, ऊपर वालों को अगर देखना है तो नेकी की चीज़ों में ऊपर वालों को देखो। वो 10 रकात नमाज पढ़ता है, हम 20 रकात नफल पढ़ के दिखाएंगे। वो इतने कुरान के पारे पढ़ता है, 10 पारा, हम 20 पारा पढ़ के दिखाएंगे। वो 3 खत्म कुरान किया है, हम 5 खत्म करके दिखाएंगे। नेकी की चीज़ों में मुकाबला करो, दुनियावी चीज़ों में अपने से नीचे वालों को देखो, दीन के कामों में अपने ऊपर वालों को देखो। अल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया, 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब वो इस दुनिया से जाएंगे अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। कितने लोग, ज़रा पूरा मजमा बोल कर बताओ कितने लोग, और ऊंची आवाज़ में बताओ कितने लोग। 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला कौन है? बड़ी तेज़ी से चलो। हुजूर फरमाते हैं, पहला वो बेटा जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हो तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता हो, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हो वो बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करता हो और माँ बाप उनको दुआएं देता हो। ऐसा बेटा जब मरेगा, इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के उस बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज़्यादा हो लेकिन हराम का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालता हो, यानी भूखा मर जाए लेकिन हराम के दाने को हाथ न लगाए, न बीवी को खिलाए, न बच्चों को खिलाए, न माँ बाप को खिलाए, न खुद खाए। ऐसा हलाल खाने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। और तीसरी वो औरत है, औरत हुजूर ने फरमाया कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे उसका शौहर राजी रहे, और जब दुनिया से उसका शौहर जाने लगे तो उससे राजी होकर दुनिया से जाए। ऐसी औरत इस दुनिया से जाएगी तो वो औरत को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथा वो इंसान जो तकरीर सुनकर, वाज सुनकर, नसीहत सुनकर गुनाहों से तौबा कर ले और ऐसी तौबा करे कि दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर न जाए, सच्ची
सच्ची तौबा करे। ऐसी तौबा करने वाला इस दुनिया से जब जाएगा अल्लाह उसे बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो गुनाह को छोड़ो, बुराई करोगे मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, टेंशन आएगा। नेकी करो, नेकी करोगे मुसीबत भी टल जाएगी और परेशानी भी टल जाएगी, टेंशन दूर होगा, अल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमा देगा। ये नुस्खे आपको अपनाने हैं। माफ़ करने वाला बनिए, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन आदमी माफ़ नहीं करना चाहता है, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहता है। आदमी ये सोचता है हम माफ़ कैसे करेंगे, उसने हमको ऐसा कह दिया, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। बदला लेने की आग में जलने वाला आदमी सुकून में नहीं रहता है, बल्कि छोटा गलती करे बड़ा माफ़ कर दे। बाप से गलती हो बड़ा बाप माफ़ कर दे, बेटे से गलती हो बाप माफ़ कर दे, बेटी से गलती हो माँ माफ़ कर दे, भाई से गलती हो भाई माफ़ कर दे। माफ़ करने वाला बन जाएं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमा देगा। इस वजह से जितनी बातें आपने सुनी है आप उस पर अमल करके देखें। अगरचे आप झोंपड़ी में रहोगे अल्लाह आपको सुकून की दौलत अता फरमा देगा। ऊपर वालों को नहीं देखना है, ऊपर वालों को देखोगे तो क्या होगा, टेंशन में आ जाओगे। नीचे वालों को अपने से देखो, नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हयात बाकी, मुलाकात होगी। वक्त ज़्यादा हो गया था, आप बैठे रहे, बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। ऐसी महफिल में बैठो माँ बहनों, तुम भी याद कर लो, एक शेर ही कम से कम गुनगुनाते रहो। तुम गाने सुनती हो और आजकल तो औरतें लोरी गाती है। लोरी, हमारे इलाके में औरतें एक लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। जब इसका बच्चा नहीं सोता गोद में लेगी लोरी गाती है। आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने की कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है। यहाँ भी है। अच्छा, सेम इधर भी है। यानी ये चांद मामा वो कटोरा ये सब गाती है। ये मत गाओ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बनो, तुम देनदार बनो। अगर गाना हो ना तो फिर ये गुनगुनाओ, अपने लाल को गोद में लो और कहो मेरा लाल तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। लोरिया नहीं गाओ, नाते मुस्तफ़ा गाओ, दुरूद पाक पढ़ो। तेरा बच्चा जब सोएगा सुकून की नींद सोएगा, अल्लाह जादू से भी महफूज रखेगा, अल्लाह सारी मुसीबतों से भी महफूज रखेगा। दुरूद पढ़ते जाओ, बच्चों पे दम करते जाओ, अल्लाह बीमारी से तेरे बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। घर में रहो, शौहर से अदब से बात करो, शौहर भी बीवी की कदर करे, शौहर भी बीवी के हुकूक अदा करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी से पूछा जाएगा, शौहर से भी पूछा जाएगा कि तूने बीवी का हक क्यों नहीं अदा किया। जितने हुकूक शौहर के बीवी पर हैं, बीवी के भी उतने ही हुकूक शौहर पर भी हैं। अगर शौहर अपना हक अदा कर दे, बीवी अपना हक अदा कर दे, झोंपड़ी में रहोगे, उस झोंपड़ी में अल्लाह के फरिश्ते दोनों की ज़ियारत करने के लिए ज़मीन पे आएंगे। कभी ऐसा करके देखो। अल्लाह याद रखिए, दौलत में सुकून नहीं है, ज़मीन में सुकून नहीं है, मकान में सुकून नहीं है। घर में मोहब्बत से रहो बेटा। जिस घर में घर मकान सब बनवा सकता है, घर कोई बनवाता है। आप कहोगे मौला साहब घर मकान सब तो एक ही होता है। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं मकान वो होता है जो ईंटों से बनाया जाता है, और घर वो होता है अगरचे मिट्टी का हो, जिस घर में
बेटा बाप से मुस्कुरा के बात करता हो, वो घर याद रखो उस बिल्डिंग से ज्यादा अफजल है। वो घर है, वो घर, उस घर में अल्लाह सुकून देता है, उस घर को अल्लाह जन्नत नुमा बना देता है, उस घर में अल्लाह बरकत डालता है, उस घर जिस घर में मोहब्बत होती है। बेटा बाप से मोहब्बत से बात करे, अदब से बात करो। अगर बरकत चाहते हो, आज लोग तावीज़ लेने दौड़ते हैं, पीर साहब आया, लगता है पैर धो के पी लेगा, चाट लेगा तलवा, खूब पीर साहब को कंधे पे उठा लेगा। उठाओ भाई उठाओ, लेकिन बाप तेरा घर में रो रहा है, तेरे बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में तेरे लिए, तेरी माँ से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए माँ बाप को राजी कर ले। पीर को देखने में हुजूर ने ये नहीं फरमाया इस पीर को देखोगे, उस पीर को देखो, उस पीर को देखोगे अल्लाह तुम्हें हज का सवाब देगा, नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से एक मर्तबा देख लो, अल्लाह तुझे नफल हज का सवाब अता फरमाएगा। कभी सोचो सही, सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होता है, कभी कभी अमल भी करके कोशिश कीजिए अमल करने की। बेटा आपसे मोहब्बत से तावीज़ लेने दौड़ते हो ना, तावीज़ लेने, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाला मौलवी साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज़ है ना, तेरे पैसे में बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज़ है, वो तेरी बूढ़ी माँ रोती रहेगी, तू उम्रा पे चला जाएगा, अल्लाह कबूल कर लेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। याद रख, हजरत अवैसे करनी हुजूर की ज़ियारत के लिए नहीं आए माँ को छोड़ के। कभी सोचा है आपने? माँ माँ माँ, और वो अवैसे करनी जो नहीं आ पाए, सारे सहाबा मुंतजिर रहते थे कि हुजूर कुछ दे दें, लेकिन हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक अवैसे करनी के लिए खुद भिजवा दिया था। कभी सोचा है? माँ बाप अगर नाराज़ हो ना, तो फिर तेरा कमाना बेकार है, सारी चीज़ें तेरी बेकार है, सब कुछ तेरे बेकार है। घर में मोहब्बत से रहो। तावीज़ लिखवाते हो, तावीज़ मैं कहता हूँ आज तावीज़ लिखवा लेते हो, माँ बाप तेरे रो रहे हैं, तावीज़ से नहीं होगा। हुजूर फरमाते गए जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं की जाती, बूढ़ों का अदब नहीं किया जाता, बड़ों का अदब नहीं किया जाता, लाख कमा लो अल्लाह तेरी कमाई में बरकत नहीं देगा। अगर बड़ों की इज्जत नहीं है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई बड़ा चले उसके आगे आगे मत चला करो, उसके पीछे पीछे चला करो। पीछे चलोगे, जितना पीछे रहोगे अल्लाह उतने तेरे मकाम को बुलंद फरमाता जाएगा। इसलिए शौहर से बीवी ज़बान दराजी न करे, शौहर भी उनके हक़ का ख्याल रखे और अदा करने की कोशिश करे कि अल्लाह के यहाँ पकड़ न हो। बेटा बाप से मोहब्बत करे, बेटी बाप से मोहब्बत करे। आज बेटियाँ भाग जाती है और ये सोचती है कि हम नाम रोशन कर रहे हैं। बेटा भाग जाता है, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी कर लेता है, वो सोचता है हम ये कर लेंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कौम की बेटियों याद रखना, तू क्या समझती है तू कहीं भाग कर शादी माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ कर लेगी, तू बिल्डिंग में रहेगी, खुश रह जाएगी? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं 1000 बार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी रहेगी, तेरी माँ रोती रहेगी घर में, तेरा बाप रोता रहेगा, वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी अल्लाह तुझे सुकून नहीं देगा। और अगर तू अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक, बाप की मर्जी के मुताबिक अगर तू शाद दुल्हन बनकर किसी झोपड़ी में भी जाएगी, उस झोपड़ी में अल्लाह तुझे जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में तेरे लिए हुजूर के बाद कोई नहीं है। माँ बाप से सबसे ज़्यादा प्यार कर, हुजूर के बाद अल्लाह और हुजूर के बाद सबसे ज़्यादा प्यार कर अपने माँ बाप से। माँ बाप से अगर तूने प्यार नहीं किया, माँ बाप अगर नाराज़ रह गए, तो सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। माँ अगर बीमार हो ना, तो बेटा बाहर में रहता है, माँ का कलेजा फटने लगता है। माँ कहती है माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और आजा मेरा लाल तू, आजा मेरा लाल तू, माँ बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार गए। माँ बाप अगर बिस्तर पे भी है ना तेरे घर में, बिस्तर पे भी है बूढ़े, तो समझ के तू अभी पहलवान है, तुझे नेक मशवरा से नवाजने वाला कोई है दुनिया में। और अगर माँ बाप जिस दिन चले जाए ना,
तुझे वो बड़ी सी बिल्डिंग घर में काटने दौड़ेगी, रौनक घर की ख़त्म हो जाएगी। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप का एहतराम करो। बेटियों, कौम की बेटियों, माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखो। कोई कदम ऐसा ना उठाओ, कोई कदम ऐसा ना उठाओ कि तेरे माँ बाप की आंखों से आंसू निकल जाए। और लड़कों, मैं आपसे भी नौजवानों कहना चाहूँगा, तू भी अपने माँ बाप से अकड़ के बात मत किया कर। माँ बाप अगर दुआएं दे देंगे तो मिट्टी को छू देगा, अल्लाह सोना बना देगा। और अगर माँ बाप नाराज़ रहेंगे तो सोने को भी छुएगा, अल्लाह उसे मिट्टी बना देगा। इसलिए सुकून चाहते हो, दौलत चाहते हो, बरकत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, मकान चाहते हो, दुकान चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, कुछ भी चाहते हो दुनिया में या आखिरत में, माँ बाप की कद्र करो, उलमा से करीब हो जाओ। माँ बाप दुआएं दे देंगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब कुछ यूट्यूब वाले सोच रहे हैं कि हम लोग तो समेट दिए, हजरत तो तकरीर अब शुरू किए हैं। तो मेरी आदत है, मैं कुछ लोगों को पैगाम देता हूँ। ये नहीं रात भर अगर ये किया वो किया, इधर उठा इधर कूदा, कोई फ़ायदा ही नहीं। दो ही चीज़ सीख कर जलसे से चले जाओ। अल्लाह की कसम, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना, मेरा आना, हजरत मौलाना मंजूर साहब क़िबला और ये क्या नाम है, मुनव्वर भाई और बहुत सारे लोग, बड़ी खिदमत किया, बड़ा अच्छा खाना भी खिलाया माशाअल्लाह, जिनके घर मेरा बड़ा अच्छा इंतज़ाम भी किया आप लोगों ने। अल्लाह ताला सबों को खुशहाली अता फरमाए। दिल से दुआ है मेरे मौला, यहाँ छोटा धर्मपुर वालों को, इस बस्ती वालों पे अल्लाह तू अपना ख़ास फजल फरमा दे, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। यहाँ जितने लोग अब तक बैठे हैं मेरे मौला, इसे कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खजरा ज़रूर दिखा देना। एक शेर सुनो और सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। एक शेर सुन लो, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सुनो सुनो सुनो, पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जितनी ताकत है ना, उतनी बुलंद आवाज़ से एक मरतबा बोलना भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा ऊंचा ऊंचा। कौन दिया है? ये अंडा भी देता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा सलमान कह रहा है और कैद से कह रहा है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आशिके मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। ज़माना, आवाज़ नहीं आई, पूरा मजमा बोलना है, भूल जाओगे नहीं तो हम तकरीर ख़त्म नहीं करेंगे। पूरा बोलना है सबको। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, इसका मतलब आप लोग सोच रहे तकरीर जल्दी ख़त्म करें, नहीं ना? अच्छा, हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। और न इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद करके जाइएगा, ज़िंदगी में खुशहाली है, चाहते हैं इतनी बातों को आप ज़िंदगी में उतार लें, जितना अल्लाह ने दिया है उसी पे राज़ी हो जाए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी पे कहे अल्लाह तूने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे। और अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना है। जब भी दुनियावी चीज़ों में देखें तो किन्हें देखना है? नीचे वालों को। अल्लाह ज़िंदगी में सुकून अता फरमा देगा। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए। उठ खड़े हो। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, क़िरात, मनक़बत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।